you were talking about this thing, right? Yeah. इसको मैं पक्का किसी को गिफ्ट कर दूंगी कोई भी अगर बोलेगा तो जो मैं पहन के गई थी yeah, this is the cheapest one. This is one of my favorite one piece by which is by Sandra Mansour, so I like this one. And yeah, I do wear my clothes on repeat mode because they are expensive and I इसमें सस्ता भी है, महंगा भी है, कुछ खुद का स्टाइल किया हुआ भी है and whatnot. क्योंकि प्राइस टैग बताना is a very cheap thing. बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लाखों का गाउन तो नहीं है, 50 to 70,000 तक का है. कुछ लोखंडवाला के लोकल ड्रेसेस भी है जिसको मैंने कटवा के रीस्टाइलिंग कर दिया. आई लाइक टू एक्चुअली रीस्टाइल इट, सो मैं लोकल टेलर्स के थ्रू भी उसको रीस्टाइल करवा देती हूँ. एंड कुछ लोअर मिडिल क्लास सेक्शंस भी है लाइक Zara, Mango and all. Other ouds as well. So this is my Gucci, this is the Chanel, this is Lancome perfume, this is Givenchy, this is Burberry, and I have all the other segments, and my favorite one is the LV. Hi, this is Khushi Mukherjee, and today I'll show you my favorite section, which is the perfume section. My favorite one has actually got over, but this is the Tom Ford Oud. I love the Oud fragrances. This is Oud Al Malaki, the Chopard, and the other Ouds as well. So this is my Gucci, this is the Chanel, this is Lancome perfume, this is Givenchy, this is Burberry, and I have all the other segments. And my favorite one is the LV Coy Batin, which is over. I have all the Victoria's Secret mists and everything else. So fragrances are something which I love, and I love the exotic fragrances. Thierry Mugler Angel, which is the old one. So yeah, all about it. And here is my wardrobe section. I'm not very brand conscious or something like that. This is my Adriana Papel gown. What all brand should I show? I don't like brands. So, oh yeah, you were talking about this thing, right? Yeah. इसको मैं पक्का किसी को गिफ्ट कर दूंगी कोई भी अगर बोलेगा तो. और this is actually some material which I need to make. उस और इवेंट पे मैं इसी को ड्रेप करके चली गई थी. This is inspired by Paris Hilton. And I like this one. This is actually golden and textured print. This is very antique and nice. This can be paired up with some emerald jewelry and nice neck pieces. This is which one? I don't even remember the name. So brand names need not be mentioned. This is one more designer gown. So this is one of my favorite one pieces, which is by Sandra Mansour. So I like this one. And yeah, I do wear my clothes on repeat mode because they are expensive and I don't waste a lot of money as well. So this is all about it. इसमें सस्ता भी है, महंगा भी है, कुछ खुद का स्टाइल किया हुआ भी है and whatnot. इसमें सबसे सस्ता कौन सा है और सबसे महंगा कौन सा है? सबसे कितने का है is not to be asked क्योंकि प्राइस टैग बताना is a very cheap thing. बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लाखों का गाउन तो नहीं है, 50 to 70,000 तक का है. और सस्ते में आई थिंक यही वाला सबसे सस्ता होगा. दिस इज द चीपेस्ट वन जो मैं पहन के गई थी. या दिस इज द चीपेस्ट वन. इससे सस्ता तो शायद कुछ नहीं है. दिस वन इज व्हिच वन? गॉड नोस. दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक. या कुछ लोखंडवाला के लोकल ड्रेसेस भी है
जिसको मैंने कटवा के रीस्टाइलिंग कर दिया. आई लाइक टू एक्चुअली रीस्टाइल इट. सो मैं लोकल टेलर्स के थ्रू भी उसको रीस्टाइल करवा देती हूँ. दिस इज वन. एंड कुछ lower middle class sections भी है, like Zara, Mango and all. This is something I recently styled. I love pinning it up and stuff. कौन सा दिखाऊं मैं? ये भी एक सस्ता सा ही ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. मैं सस्ता महंगा, yeah, this is one MK one piece. And talking cheap, actually I wear the outdated collections also, जो signature themed होते हैं. और क्या बोलते हैं, आउटलेट मॉल में वो सस्ता भी मिल जाता है. मतलब 35,000 की चीज़ें आपको 12,000, 13,000, 15,000 तक मिल जाता है. तो yeah, I am also stingy. That's all. Yeah. And this is a BB gown which I have. मैं कैसे लगूंगी मुझे खुद नहीं पता. इतने सारे मेरे नाम ले लिए जाते हैं या इतने सारे मुझे कंपैरिजन कर दिया जाता है कि मैं अपना असली वजूद भूल रही हूँ. कि लोग मुझसे पूछते थे ना कि खुशी मुखर्जी कौन है. अब मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि खुशी मुखर्जी सच में कौन है. लेकिन जिस बिकॉज सलमान रोके दिखा देता है उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार कि हम एक आर्टिस्ट है, हम अपने आप को प्रमोट ना करें. आई डू अंडरस्टैंड कि पीआर्स भी अपना घर चलाते हैं और पीआर्स को भी पैसे चाहिए होते हैं, हमें भी पैसे चाहिए होते हैं. मेरा ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज माय ऐप. लेकिन मैंने उस ऐप को बंद कर दिया बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ऑफ कोर्स इन अ वे वो वल्गर लग रहा है. और अगर वो ऐप की वजह से मेरे पीछे लोग पड़े हैं, मैंने उसको बैन कर दिया है, तो सनी लियोनी को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है हमारे इंडिया में? सारे फॉरेनर्स को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? पाकिस्तानी एक्टर्स बैंड है, तो सारे जो वर्क परमिट लेके इंडिया में आ रहे हैं वो भी बैन होने चाहिए. अभी लेटेस्ट टॉपिक जो निकल रहा है ड्रग्स का, ये ड्रग्स कैसे सेल होता है हमें नहीं पता. या तो वो वाटरवेज से आते हैं, या तो वो रेलवेज से आते हैं, या तो कहीं ना कहीं से आते ही है ना. फ्लाइट में कुरियर के थ्रू चला जाता है, पेपर में रैप करके चीज़ें करके. वी ऑल नो दैट. या फिर अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया तो कोई पुलिस वाले को भेज के मेरे ही घर में ड्रग्स भेज के और मुझे ही प्लांट करवा देंगे. ये सारी चीज़ें हो चुकी है ना. और इंडस्ट्री को मैंने कम से कम 10 से 12 साल दे दिया है. आई हैव स्टार्टेड वर्किंग from a very early age and I come from a decent family. My brother had worked with Priyanka Chopra, Snoop Dogg and everyone. तो मैं कुछ बता भी नहीं पाती हूँ कि मैं बताऊँ तो क्या बताऊँ. कि मुझे ऐसे सारे ऑफर्स आते हैं या